Hi guys, welcome to Logity. How are you all? And today we are going to talk about what new law students should know. क्या वो बातें हैं जो नए law students हैं उनको पता होनी चाहिए, which are very very important. और ये question बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, तो I thought I should do a video. And guys, I welcome you all as law students to Logity. And I'm so happy because I've seen you as law aspirants and now you are law students, and the day is not far when you're going to get placements, you're going to get placed with big law firms, have your own law firms, do various other things like going abroad, doing LLM, being a professor, and the tag of loggery is going to stay with you for your entire life because I'm going to help you like always, right? So as law students, this is going to be your first video of 2021 एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट. दिस इज गोइंग टू बी अ मास्टर क्लास. ये एक मास्टर क्लास है जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट 2021 और इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट ऑफ एनी अदर बैच ऑल्सो हु नेवर न्यू दैट वॉट यू नीड टू डू एज अ लॉ स्टूडेंट. तो ये वीडियो मिस करना नहीं बनता है, बहुत ज़रूरी वीडियो है. लेट्स गेट स्टार्टेड. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Congratulations and welcome 2021 batch. Wow, I feel so proud of you that you are law students now and you're going to, go through this journey with Loggery as Loggerians. This is a really proud moment for me. So comment down below. Are you excited? I should see your excitement in the comment section below, and I promise I'm going to reply to each of your comments. You need to comment down below #Loggerians excited. Let's get started. Step 1 is be happy, contented, but driven and proud of where you are. You were not able to make it to an NLU. You were not able to make it to a top NLU or the college that you wanted to. It's fine. Whichever college you are in, you should be contented, happy, proud of where you are, and you should be excited about it. Because I want to tell you this, because a lot of my students from 2020 batch, when they got admission in the colleges that they were not expecting to get into, like they did not wanted to, not expecting, they did not want to get admission in that college, but they had to because they were not getting any other college. मतलब ऐसा हो रहा था कि उनको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, बट उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी. तो वो क्या थे, वो एंग्री थे अपने आप से, वो सैड थे. दे वर एंग्री और सैड विद देमसेल्फ. प्लीज डोंट बी सैड और एंग्री विद योरसेल्फ. इंस्टेड बी हैप्पी that you have one of the best tags with yourself, that is that you are a law student. You should remember that you are a law student and you are a Loggerian and you are a Loggerian, and we are going to take you ahead. We are going to take you forward. I'm going to share with you everything that I can. So you should be proud, you should be happy, you should say that okay, what now, right? This should be the thing. But one thing that I want to tell you is learn your lessons. Learn your lesson. Why you were not able to clear the entrance exam? Were you weak in any subject? Weak in any subject? You were not able to manage time management was weak. What was weak? Make sure that you are able to work on it, and in future if you give any other competitive exam, the lesson, that the mistake that you committed here is not committed ever again. You learn your lesson and move forward. Learn your lesson and move forward. That is what I expect of you. Don't be angry or sad. Instead, be confident and happy. That is what I expect of you. And if you are sad or angry with yourself, sit down with yourself, have a journal with yourself. I'm going to talk about it. Sit down, write it down in your journal, that why you are sad, why you are angry, and then tell yourself that I need to be enthusiastic about law. You need to show that enthusiasm about law. You need to be a curious lawyer. You need to be a curious lawyer. Now I want to discuss one more thing. There are two types of law students. One who have decided themselves that they want to go for law, right? I expect these guys to be super excited and super full of enthusiasm, right? And then there are students whose parents said that you should go for law, whose parents said,
whose parents said that beta वकील बनना पड़ेगा. Now this category, please don't be sad. I'll say that you could have fought your wars then. Right, you could have fought your war the day you were getting admission, and you could have told your parents मुझे ये नहीं करना है. But now you are in this college, in this institute as a law student. Work hard and do what best you can do. So creating that enthusiasm, creating that passion in yourself, you need to fall in love with the subject, you need to fall in love with the subject of law, you need to be curious about law, you need to be passionate about law. I need all of these things in you. Next is do the deed. If you ever read Bhagavad Gita, you're going to learn this lesson, that what it says is what best you can do right now. What best you can do right now to be a successful lawyer. As a law student, as a first year law student, what you can do to be a successful lawyer. अब भी क्या कर सकते? Don't think about the past. I've told you that from past what we are going to learn lessons and move on. Where? Present. And in the present we are going to work hard. We're going to work hard in the present, do our best, and we are going to secure our future, but we are not going to worry about future. We are not going to worry our future. We're going to plan our future by staying in present and working hard. Right? So past तो हम भूल जाएंगे, lessons लेकर हम आगे बढ़ेंगे. Done. We are on the same page. And if you don't know what you need to do as a law student, what नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए एक successful lawyer बनने के लिए as a law student, this video is meant for you. Let's see what you need to do, and I hope you are happy and you are not angry with yourself. Instead, you learn your lessons and move forward. Okay? Aim 2. We are done with step 2. We are on aim 2. What is our aim? Good understanding of all the law subjects that are being taught in the college. Good understanding of all the subjects that are being taught in the college. I'm talking about law subjects. I'm talking about law subjects. You need to be good at these subjects. They matter. Law subjects matter. You need to have a good understanding. Now when I say good understanding, I do not want to say should I mug up everything. मुझे वो बच्चे नहीं पसंद जिनको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ अच्छा इसका लॉ क्या है, वो सेक्शन बता देते हैं और पूरे की पूरे सेक्शन की बेयर प्रोविजन बता देते हैं. बट अगर मैं उनको कहूँ कि अच्छा मुझे समझा दो कि कैसा होगा, दे आर लाइक हमें नहीं पता, वी डोंट नो. रट्टू तोता नहीं चाहिए, रट्टू तोता नहीं चाहिए मुझे. वी आर लॉयर्स, यू आर लॉयर्स. 3 इडियट्स याद है? उसके अंदर आमिर खान क्या था? उसको अंडरस्टैंडिंग थी आमिर खान को, और जो दूसरा पर्सन था वो क्या था? रट्टू तोता. रट्टू तोता. रियल लाइफ के अंदर भी वो मूवी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, और आप लॉयर्स के लिए भी. मुझे रट्टू तोते नहीं पसंद, और ना ही अगर आप सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहते हो आपको ये रट्टू तोता वाला कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहिए. मगिंग अप एवरीथिंग इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू मेक यू अ गुड लॉयर. व्हाट इज गोइंग टू मेक यू अ गुड लॉयर इज शुड बी एबल टू मेक योरसेल्फ एंड अदर्स अंडरस्टैंड द लॉ इन एन ईजी मैनर. आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. कोई प्रोसीजर बताया हुआ है, प्रोसीजर का सेक्शन याद है, ठीक है, वेरी गुड. और फिर आपने उसकी बेयर प्रोविजन बता दी कि ऐसा है, रट्टा मारा हुआ है कि जैसे हम आंसर शीट में आंसर लिख कर आते हैं उस चीज़ के लिए. बट अगर मैं कहूँ अच्छा कौन से कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या है, कुछ भी नहीं पता. इजी लैंग्वेज में हमें नहीं आता क्योंकि हमने तो मगअप किया हुआ है. वो वाला लॉयर नहीं बनना है. अगर आप एक ट्रू लॉगिरियन हो तो ये वाला लॉयर नहीं बनना है. एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. क्वेश्चन आता है कैसे बनेंगे हम एक ऐसे लॉयर जिसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो. मैं बताऊंगी कैसे बनना है, बट प्रॉमिस करो मगअप करने वाला लॉयर नहीं बनोगे. बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है जो मगअप करने वाले लॉयर होते हैं ना तो उनका कोई एग्जाम क्लियर होता है, ना ही वो प्रैक्टिस कर पाते हैं, और ना ही उनको कोई लॉ फर्म रखती है. तो इसीलिए अगर एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है तो हमें रट्टू तोता नहीं बनना. जो 9th-10th में कर रहे थे, जो +1 +2 में कर रहे थे, वो अब कर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला. ओके
स्टूडेंट्स, आई वांट टू क्लियर वन मोर थिंग। आपका क्राउड कैसा है, मतलब आपके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं, ये मैटर नहीं करना चाहिए। आपकी फैकल्टी कैसे है, प्रोफेसर्स आपकी हेल्प करते हैं या नहीं करते, ये कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए। क्या मैटर करना चाहिए, व्हाट यू कैन डू। ये सब एक्सक्यूजेस हैं कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, हमारी फैकल्टी अच्छी नहीं है, कैसे पढ़ें, प्रोफेसर्स अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। लॉ गिरी पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सेल्फ स्टडी बेस्ड होते हैं। सेल्फ स्टडी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ या नहीं बताती हूँ मैं, सेल्फ स्टडी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये वाले एक्सक्यूजेस कि हमारा तो स्टूडेंट्स बहुत बेकार है, फैकल्टी बहुत बेकार है, कॉलेज बहुत बेकार है, कुछ भी है, व्हाट यू कैन डू, what best you can do is what matters. And now back to the question, how to do that, how to study law so that you have one of the best understanding of law as a subject. How to study law, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बेयर एक्ट प्लस टेक्स्ट बुक्स, हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे, जिस जिस सब्जेक्ट का बेयर एक्ट आता है उसका बेयर एक्ट पढ़ेंगे और टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे। कमेंट्रीज अभी नहीं पढ़ना है, टेक्स्ट बुक्स पे फोकस रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैंने कर रखा है ऑलरेडी। हाउ टू रीड बेयर एक्ट्स एज अ लॉ स्टूडेंट, वीडियो मिलेगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बताया हुआ है कि कैसे आपको स्टडी करनी है एज अ लॉ स्टूडेंट। अब अब इस वीडियो में स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो मुझे उस वीडियो के अंदर, आई विल डू वन मोर वीडियो जिसके अंदर मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। बट इस वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे बेयर एक्ट्स पढ़ने एज अ लॉ स्टूडेंट, हाउ टू स्टडी लॉ, वीडियो करा हुआ है। ये सारी वीडियोज आप आज ही देख लोगे, आज या कल में ये वीडियोज देख लोगे, इसमें से नोट्स बनाओगे सो दैट आपको पता हो कि आपको क्या कैसे करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बताया हुआ है कि बेयर एक्ट्स और टेक्स्ट बुक्स में से कैसे पढ़ना है, राइट। मोस्टली बच्चे क्वेश्चन करते हैं क्या हमें हर एक टॉपिक ऐसा पढ़ना है, बेयर एक्ट और टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, इतना इंटरेस्ट है, जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के लिए करो, पढ़ो। बट अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जो मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो के अंदर, जिसमें बताया हुआ कि हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स, अगेन इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैंने बताया हुआ है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से आपको ढूंढना है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर आप ऐसे पढ़ते हो, मतलब कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, आप बेयर एक्ट प्लस टेक्स्ट बुक में से पढ़ते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप अच्छी होगी, ठीक है ना। द टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक दिस, यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, ठीक है ना। सबसे पहला मैंने क्या बोला, रट्टा नहीं मारना, और नंबर 2 क्या बोला कि बेयर एक्ट में से पढ़ना है प्लस टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ना है, और अंडरस्टैंडिंग, उसको पढ़ो समझो फिर आगे बढ़ो, रटो नहीं कि अच्छा ये है सेक्शन 2, ये सेक्शन 2, ये नहीं, सेक्शन 2 ये तो आगे क्या है, इसके अंदर क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है लॉ, ये जरूरी है, राइट। आप लोगों से चाहती क्या हूं, अब मैं क्या चाहती हूँ आप लोगों से, स्टडी एवरी डे फॉर 10 आवर्स, नो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप स्टडी करो एवरी डे फॉर 10 आवर्स, लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो और एक किताबी कीड़ा बन जाओ, बुक वर्म नहीं बनाना चाहती हूँ मैं आपको, नहीं, ये हमने नहीं करना है। देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ यू, अटेंटिव इन क्लास, प्रोफेसर इज गुड। देखिए कभी प्रोफेसर आपको किसी सब्जेक्ट का अच्छा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सम प्रोफेसर्स आर गोइंग टू बी सो ग्रेट कि उस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी बनेगी, और कई प्रोफेसर बहुत ही बेकार होते हैं, वो बस नाम के प्रोफेसर बन जाते हैं, पढ़ाना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वैसा बहुत कॉमन होता है। तो अगर ऐसा प्रोफेसर है, बहुत अच्छा है, तो इनकी नोट्स अपनी उनकी क्लास में क्लास नोट्स भी बनाओ सो दैट आपके लिए एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाए एग्जाम के लिए। प्रोफेसर बहुत ही बेकार हैं तो आप 2 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ भी सकते हो, हर रोज नहीं, ऑन एंड ऑफ पढ़ सकते हो, या वीकेंड्स पे आप 6 to 8 आवर्स लगा सकते हो। अगर आपका हर सब्जेक्ट का प्रोफेसर ही बेकार है और सब कुछ आपको खुद ही पढ़ना है, तो आप वीकेंड पे बना सकते हो, या आपको पता होता है कि यार मेरे 3 मंथ्स के अंदर एग्जाम है और सारे प्रोफेसर बेकार हैं, तो क्या कर सकते हो, क्लास के अंदर अपनी बुक लेकर चले जाओ, पढ़ते रहो, मार्क करते रहो, ठीक है। नंबर 1 ये वाला टाइम वेस्ट नहीं होगा। नंबर 2 अपने 3 मंथ्स के अंदर ऐसा टाइम डिवाइड कर लो कि मैं खुद ब खुद ही सब कुछ पढ़ सकूं, राइट। ये कब करना है, जब प्रोफेसर बहुत ही बेकार है, क्लास में हमारा जो इनटेक है स्टडीज का 0 है, ठीक है। स्टडिंग 1 मंथ बिफोर द एग्जाम, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या करना है, 1 मंथ एग्जाम से पहले हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर हमें ज्यादा ही पढ़ना है तो 1 मंथ 15 डेज पहले हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं।
हाउ टू स्टडी की वीडियो बहुत ही अच्छी मैंने करी हुई है, हाउ टू स्टडी फॉर लॉ एग्जाम्स नाम की वीडियो होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वो वीडियो आप अभी देख लीजिए, बिकॉज जो मटेरियल इकट्ठा करना है वो आप अभी से करना स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, अब देखते हैं कि क्या चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे कि आप वो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो क्या है चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ना करें। जैसे कि से नो टू शॉर्ट नोट्स मेड बाय समवन एल्स। देखो, जब कोई नोट्स आप किसी और के बने हुए नोट्स यूज करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो जीरो होगी। आप फिर क्योंकि उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा कर करा दिए हैं तो आप वो क्या करोगे, रट्टा मारोगे, रट्टाफिकेशन जिसे हम कहते हैं, रट्टाफिकेशन। तो अगर आप किसी और के बनाए गए नोट से पढ़ रहे हो तो आप मगअप ही करोगे, आप रट्टाफिकेशन ही करोगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी जीरो रहेगी, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको कोई भी एग्जाम देना है, आप यूपीएससी में लॉ एज अ सब्जेक्ट लेकर एग्जाम देना चाहते हो, आप किसी स्टेट का जुडिशरी क्लियर करना चाहते हो, आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो जिसके अंदर लॉ मेजर बेसिस है, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, आप एलएलएम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप किसी कंपनी में इन हाउस काउंसिल लगना चाहते हो, आप किसी लॉ फर्म के अंदर काम करना चाहते हो, खुद की लॉ फर्म खोलना चाहते हो, लिटिगेशन में जाना चाहते हो, लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट में काम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो जिस टाइम पे ये एग्जाम्स दे रहे होगे या जिस टाइम पे ये जॉब लोगे या फिर जिस टाइम पे इस जॉब के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे, यू विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम, यू विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज जीरो होगी, क्योंकि आपकी बेसिक नॉलेज जो होगी वो जीरो होगी, एंड उस टाइम पे इस जीरो से हीरो बनने के लिए, जेड को एच बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कैसे करना है। तो ये चीज तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे, तो दिस इज अ बिग नो। से नो, नेक्स्ट से नो टू दुक्की। तो दुक्की क्या है, प्रिंटेड शॉर्ट नोट्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, एके जैन की कंपनी है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये प्रिंटेड नोट्स देती हैं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो लॉ में, देखो अगर तो आप लॉ सिर्फ नाम की करना चाहते हो कि ठीक है यार लॉयर का टैग लग जाएगा, सिर्फ लॉयर टैग देना और कुछ नहीं है और मुझे किसी और फील्ड में जाना है, तो आप ये नोट्स पढ़कर पास कर सकते हो एग्जाम। बट अगर आपको कुछ बहुत अच्छा करना है लॉ के अंदर, ये नोट्स इवन हम भी प्रोवाइड करें, www.lawgiri.com पे प्रोवाइड करें नोट्स। बट अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो लॉ की फील्ड के अंदर तो इन नोट्स में कोई भी नोट्स के लिए मत जाना, खुद टेक्स्ट बुक्स पढ़ना, खुद नोट्स बनाना, ठीक है, सेल्फ मेड नोट्स पर निर्भर करना। हाउ टू नो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, हाउ टू नो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है। इसके ऊपर वीडियो जो आपकी एग्जाम के लिए वीडियो करी है वही वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग पे वीडियो करा हुआ है, हाउ टू राइट आंसर, आपको आंसर लिखकर दिखाया हुआ है कि ऐसे लिखना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है कमेंट करो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है एंड मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी, राइट, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। नेक्स्ट इज हाउ टू मेक नोट्स, इस पे भी वीडियो करा हुआ है, खुद से नोट्स कैसे बनाने, हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे सभी बच्चे, मेरे अच्छे बच्चे हैं, सब लॉगिरियंस हैं तो ये करेंगे, राइट। हाउ टू लर्न लॉ सब्जेक्ट्स, ये ट्रिक्स शेयर करे हुए हैं, ट्रिक्स शेयर करे हुए हैं कि कैसे लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस आप अभी देख लीजिए, आजकल में ही देख लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए सो दैट आपको पता हो कि आपने लॉ कैसे करना है। ये तो हमारी बात होगी सब्जेक्टिव, ठीक है। ऐसे मैंने डिस्कस किया, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, बाय स्टडिंग लाइक दिस यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, गिव एंड क्रैक एनी एग्जाम इन द फील्ड ऑफ लॉ। यू नो, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं और लॉ एज अ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप देखोगे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार दुक्की में से पढ़ लो, कि यार नोट्स में से पढ़ लो, ठीक है। आप कहोगे अगर उनका दुक्की और नोट्स में से क्लियर हो रहा है तो आप मुझे क्यों टेक्स्ट बुक्स पढ़ा रहे हो, क्योंकि उन्होंने लॉ स्कूल के अंदर टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी, उन्होंने लॉ स्कूल के अंदर टेक्स्ट बुक्स और बेयर एक्ट पढ़ी थे, तो उनका जो बेस है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, उनके बेसिक्स क्लियर हैं, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है उनके। तो जब उन्हें एग्जाम देना है वो कोई भी छोटी सी बुक लेंगे, उनको पढ़ेंगे और एग्जाम क्लियर कर देंगे, राइट। अब बहुत बच्चे पूछते हैं हम जुडिशरी के लिए क्या करें, जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं अगर आप वो अच्छे से पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको आंसर राइटिंग सिखाई, अगर वो आंसर राइटिंग आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हो तो जुडिशरी के लिए आपकी प्रेपरेशन साइड बाय साइड हो रही है, राइट।
तो आप अगर जैसे मैं पढ़ने को कह रही हूँ वैसे पढ़ोगे तो आप कुछ भी बन सकते हो, जो आप चाहते हो वो बन सकते हो। आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हो, जुडिशरी क्लियर करना चाहते हो, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, एलएलएम करना चाहते हो इंडिया से, एलएलएम करना चाहते हो अब्रॉड से, इसके लिए भी आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अगर एलएलएम इंडिया से करना चाहते हो अच्छे कॉलेज से, एनएलयू से करना चाहते हो, तो अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। कहीं किसी और देश का लॉ पढ़ना है तो पहले अपना तो समझ लो, तभी उनका समझ पाओगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ होनी चाहिए, तो अगर ऐसे पढ़ोगे तो वो आएगी। एक्सपोजर प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस नेटवर्किंग प्लस गुड सीवी। एक्सपोजर, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या करें, अदर स्टूडेंट्स व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर देयर प्लान, अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, लोगों से बात करना। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, सारा का सारा सब्जेक्टिव नॉलेज थी। क्या ये जरूरी है? बहुत लोग, हाँ एक बात और, एक मिथ जो मैं यहाँ ब्रेक करना चाहती हूँ, मिथ जो यहाँ पे ब्रेक करना चाहती हूँ वो ये है, बहुत सारे लॉयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कहें अरे लॉ पढ़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं, यू डोंट नीड टू स्टडी, अपने आप ही आ जाती है। मैं एक बात बता दूं आपको, वो टाइम गए, वो टाइम गए। अगर आपको सक्सेसफुल लॉयर बनना है तो सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ इवन प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। प्रैक्टिकल, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसे हम कह देते हैं। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मतलब एक्चुअल में कैसे लॉ का काम होता है, एक्चुअल में कैसे काम होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। वो कैसे होगा? नेटवर्किंग, गुड सीवी, कैसे होगी ये सब चीजें? ये सब चीजों का आंसर है, आंसर इज इंटर्नशिप्स। अगर इंटर्नशिप्स करोगे तो वो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने पिछली स्लाइड में बात करी है। तो व्हाट आर इंटर्नशिप्स? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो एज अ लॉ स्टूडेंट या एज अ स्टूडेंट, तो उसको कहते हैं इंटर्नशिप, और आपको बुलाया जाएगा इंटर्न। तो दीदी क्या ये पेड होती है, हमें पैसा मिलेगा क्या इसके लिए, हाउ मच दे आर गोइंग टू पे अस, पेड होगी क्या? ये बहुत कम चांसेस है, मैं कहूँगी 15% चांसेस होते हैं कि ये पेड हो। मोस्ट ऑफ द चांसेस ये पेड नहीं होती है, क्योंकि और हमारा एम क्या होना चाहिए, लर्न, टू लर्न। बहुत सारे बच्चे इसलिए इंटर्नशिप्स नहीं कर पाते बिकॉज वो पेड इंटर्नशिप ढूंढते रहते हैं और उनके 5 साल और 3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, उनको पेड इंटर्नशिप नहीं मिलती है। बट आप एक लॉगेरियन हो और मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र शेयर करने वाली हूँ कि आपने किसको फोकस देना है, किस पे चीज़ पे फोकस करना है, कि अगर मुझे कोई इंटर्नशिप ऐसी मिल जाती है जिसके अंदर मुझे काम सीखने को मिलता है तो मैं उस इंटर्नशिप में जाऊंगी। मैंने इसके ऊपर भी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करी हुई है कि पेड इंटर्नशिप्स में जाना चाहिए या कोई और इंटर्नशिप में, वो कैसे डिसाइड किया जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये पेड वाला कॉन्सेप्ट हमने अपने दिमाग में नहीं घुसाना है, क्योंकि बहुत बच्चे जो अच्छे लॉ स्कूल्स के होते हैं उनको लगता है यार मैंने तो यहाँ पे एडमिशन ले ली, बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो जीरो है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज तो जीरो है। वो लोग सिखाएंगे आपको, तो जहाँ पर सीखने को मिलेगा वहां पर जाओगे, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकली जीरो हैं और हीरो बनने के लिए हमें किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, राइट? तो लॉ इंटर्नशिप्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देती है, और अगर आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप प्रैक्टिकल में भी हीरो बन जाएंगे या हीरोइन बन जाएंगी, नहीं तो फेल हो जाएंगी। तो सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। फ्रॉम व्हेन शुड आई स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप? कब से इंटर्नशिप करना स्टार्ट करूँ? फर्स्ट डे इन योर लॉ स्कूल, फर्स्ट डे इन योर लॉ स्कूल, ठीक है, तब से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप लॉ स्टूडेंट बन गए, ठीक है, अभी लॉ स्कूल स्टार्ट भी होने वाला है, उससे पहले इंटर्न्स आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट डे इन योर लॉ स्कूल आप इंटर्नशिप कर सकते हो। अब बहुत मिथ सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला मिथ जो ये है कि आप जब आपकी क्लासेस चल रही है ना उसके साथ साथ आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते। देखो यार, कोई भी अभी तक आप किसी भी लॉ फर्म में अप्लाई करने जाओगे या किसी में भी जाओगे तो वो ये नहीं देखेंगे आपकी क्लासेस चल रही है नहीं, हर किसी को मतलब ये होता है कि आप उनका काम कर कर दे रहे हो या नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप मान लीजिए आपकी इवनिंग्स फ्री हैं, ठीक है ना, तो आप इवनिंग इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं किसी एडवोकेट के साथ, किसी फर्म के साथ, किसी एनजीओ के साथ, राइट। अगर आप मान लीजिए आपके पास इवनिंग्स फ्री नहीं है, वीकेंड्स फ्री है, तो आप वीकेंड इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी एनजीओ के साथ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कुछ भी फ्री नहीं है, आप ऑनलाइन इंटर्नशिप कर सकते हैं। मे बी आप जिस शहर में अभी रह रहे हैं वहाँ पे ना तो कोई एनजीओ ना कुछ और है, तो आप ऑनलाइन इंटर्नशिप्स के लिए जा सकते हैं और आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा मिथ जो है, दीदी हमें तो लॉ की नॉलेज ही नहीं है। देखो, एनजीओ में काम करने के लिए लॉ की नॉलेज नहीं चाहिए होती, हिम्मत चाहिए होती है काम कर। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको लोग दिखेंगे, जो हम न्यूज़ में सुनते हैं कि
बहुत लॉयर्स पकड़े जाते हैं जो एक्चुअल में जिनके पास डिग्री नहीं होती बट वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसका क्या प्रूव होता है कि लॉ की डिग्री ज़रूरी नहीं है लॉ का काम करने के लिए। ठीक है ना, तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं दैट इज़ इनफ। अगर आप हिम्मत रखते हैं कि आप एक एडवोकेट को ज्वाइन करके उसकी फाइल्स पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, स्टार्टिंग के अंदर आपको लॉ फॉर्म डायरेक्टली नहीं मिलेगी। बहुत बच्चे कहते हैं हमारी फर्स्ट इंटर्नशिप जो होनी चाहिए वो एक लॉ फॉर्म के साथ होनी चाहिए। आप एडवोकेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट के साथ स्टार्ट करिए, बहुत बेटर रहेगा। या आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। सबसे पहले एनजीओ के साथ करिए और सेकेंड इंटर्न आप एडवोकेट के साथ करिए, और ये फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। अगेन मैंने वीडियो करा हुआ है कि अगर आप लॉ इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप कैसे यू कैन मेक श्योर दैट यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, सब कुछ बताया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। अगेन आप अगर ये वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी। राइट, नेक्स्ट चीज इज हाउ कैन आई फाइंड इंटर्नशिप्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आप www.loggery पे जाएंगे तो मैंने लिस्ट क्रिएट करी है आप लोगों के लिए एनजीओज की, तो 100+ की लिस्ट है जिसके अंदर आपको मैंने ईमेल प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पे जाके अप्लाई करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। ड्यूरिंग कोविड हाउ टू डू इंटर्नशिप्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इंटर्नशिप कैसे करें दी, हमारे घर वाले अलाउ नहीं करे, हम तो कॉलेज भी नहीं गए अभी, तो घर बैठे बैठे कैसे करें। एक आंसर मैं दे चुकी हूँ, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स करिए। ऑनलाइन इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा चल रही है, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स करिए। नंबर 2 इज़ आप जिस भी सिटी में हैं, जिस भी टाउन में है, कहीं पर भी हैं, वहाँ पे एडवोकेट्स तो होंगे ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या कोई भी एडवोकेट्स तो होंगे आसपास कहीं पर भी। और अगर कोविड कम है जहाँ पर आप रह रहे हो तो आप एडवोकेट्स को इवनिंग ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, इवनिंग ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो एडवोकेट का। और वहाँ जाके आप क्या करोगे, उनको बोलो कि जी मुझे फाइल पढ़ने दो, देखो वो क्लाइंट्स को कैसे अटेंड करते हैं, नोट्स बनाओ। ठीक है, फाइल पढ़कर, केस को पढ़कर, हियरिंग्स को अगर सुनने का मौका मिले, मान लीजिए आप सुबह फ्री हैं, कोई क्लास नहीं आपकी कॉलेज में, हियरिंग सुनने चले जाओ। ठीक है, नो डाउट वीसी के थ्रू हो रही है बट कुछ कोर्ट्स में, नीचे वाली कोर्ट्स में इन पर्सन हियरिंग हो रही है, एडवोकेट के साथ जाओ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा बिकॉज पता नहीं आप उसके बाद कहाँ पर होगे। और हर टाउन में, हर सिटी में एडवोकेट्स होते ही हैं, तो आप उनका इवनिंग ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, कोविड के ड्यूरिंग आप ये कर सकते हैं। और ऑनलाइन इंटर्नशिप बहुत अच्छे से चल रही हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ टू मेक अ सीवी, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको जब इंटर्नशिप अप्लाई करना है तो आपको रिज्यूमे भेजना होता है, जिसे हम सीवी भी कह देते हैं, वो कैसे बनाना है, अगेन इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने करी हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, अगर हमें एक अच्छा लॉयर बनना है या अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है या फिर एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को जानें, असेस करें कि मैं किस चीज़ में स्ट्रांग हूँ और किस चीज़ में वीक हूँ। और एज ह्यूमन बीइंग्स हमें पता होता है कि मेरी क्या चीज़ स्ट्रेंथ है और क्या चीज़ में मैं वीक हूँ। जिस भी चीज़ में आप वीक हो उसके ऊपर वर्क करना और उसको स्ट्रांग बनाना इज़ वॉट यू शुड डू। ठीक है, अगर आप एक अच्छे लॉयर बनना चाहते हो तो कुछ स्किल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। वो कौन सी स्किल्स हैं बच्चों, लाइक स्पीकिंग, राइटिंग। स्पीकिंग को हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोल देते हैं, राइटिंग को हम ड्राफ्टिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, आपको रिसर्च में अच्छा होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपने। और कॉन्फिडेंस कैसे आती है मेरे बच्चों, नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। एबिलिटी टू स्पीक है, नॉलेज प्लस स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर नॉलेज है बट बोलने की स्किल नहीं है तो प्रॉब्लम रहेगा, नॉलेज है बट लिखना नहीं आता तो प्रॉब्लम है। राइट, तो नॉलेज प्लस स्किल्स हमारे लिए क्या लेकर आती हैं, बहुत सारा कॉन्फिडेंस। राइट, एबिलिटी टू स्पीक टू एनीवन, ये भी चाहिए एज अ लॉयर, एबिलिटी टू स्पीक एंड कन्विंस एनीवन। ठीक है, क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है, जज को कन्विंस करना पड़ता है, अपनी टीम को कन्विंस करना पड़ता है, ये सारी चीजें जरूरी हैं। इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां पे भी आपको बोलना पड़ता है। ठीक है ना, अब क्या मैम मैं ये सारी स्किल्स पे एक साथ काम करना स्टार्ट कर दूं, कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं कि मैं, देखो यार मेरे अकॉर्डिंग अगर आप खुद ब खुद अपनी स्किल इंप्रूवमेंट पे काम करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड खुद ब खुद कैसे काम करना है इस चीज पे मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कर रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड एक साथ ही सारी स्किल्स पे नहीं काम करना, नोट्स में लिखो एंड सोचो कि मैं किस चीज में वीक हूँ, सबसे ज्यादा वीक हूँ, उस पे सबसे पहले अटैक करो। सबसे फर्स्ट अटैक किस पे करो, जिसमें आपको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा वीक हूँ। ठीक है, एवरी ईयर वर्क ऑन वन थिंग यू थिंक यू आर वीक इन, हर साल
अगर आपको लगता है कि यार थोड़ी सी ही वीकनेस है, एक सेमेस्टर में ही खत्म हो जाएगी, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो 1 ईयर लगा दो और उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना दो, अपनी स्ट्रेंथ बना लो। इंग्लिश कैसे बोलनी है, वीडियो ऑलरेडी करी हुई है। ड्राफ्टिंग कैसे इंप्रूव करनी है, ऑलरेडी वीडियो है। रिसर्च कैसे करनी है, ऑलरेडी एक वीडियो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कॉन्फिडेंस कैसे करना है, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, इस चीज के ऊपर भी मैंने वीडियो कर रखी है। एंड अभी और वीडियोस आती रहेंगी। जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मेरे साथ कमेंट्स में प्लीज 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 शेयर करो, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट, राइट। आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि what is necessary is some good marks प्लस इंटर्नशिप्स। ये तो हर बच्चा करेगा ही करेगा, ठीक है ना। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप ये नहीं कर रहे हो, ये तो नेसेसरी है, मैंडेटरी है। बट कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड जो लॉगेरियंस हैं, जो मेरे पक्के ओजी लॉगेरियंस हैं ना, वो तो ये करेंगे ही करेंगे। वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी activities to make your CV extraordinary. You need to do some extraordinary things, and number one is research paper. research paper लिखना है। how to find the topic, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वाली वीडियोस जो मैं कर रही हूँ वो देखो, ठीक है। उसके अंदर मैं बोलती हूँ, आई स्पीक कि यार ये टॉपिक है, इसके ऊपर लॉ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। और ये जजमेंट्स आपकी अवेयरनेस भी बढ़ाती हैं, प्लस आपको टॉपिक्स भी देती हैं कि कौन से टॉपिक्स पे आप रिसर्च कर सकते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स की वीडियोस मैं करती रहती हूँ, वो भी देखो। एंड आज के बाद मैं पता क्या करूँगी, जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगी उसके बाहर लॉ स्टूडेंट्स लिखा होगा। इतना मैं कर सकती हूँ कि मेरे लॉ स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि हाँ ये हमें देखनी है। तो जिस वीडियो पे मैंने लॉ स्टूडेंट्स टैग कर दिया वो आप देखोगे, राइट। फ्री पीडीएफ दे रही हूँ मैं www.loggery.com पे आपको, जजमेंट्स के, जो कि ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं, बट मैं आपको कंपाइलेशन में दे देती हूँ हर मंथ। अभी भी करा हुआ है मैंने वीडियो, ठीक है। आप देखिए उसको, वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। अगस्त की मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट शेयर करी हुई है, वो वीडियो देखो एंड उसमें से देखो कि आप किस पे रिसर्च कर सकते हो। रीड रिसर्च पेपर्स रिटन बाय अदर्स, गूगल करोगे रिसर्च, लीगल रिसर्च पेपर्स, इतने सारे रिसर्च पेपर्स आएंगे, देखो उन्होंने कैसे फुट नोटिंग करी है, क्या है क्या नहीं। करंट अफेयर्स पे बेस्ड भी रिसर्च पेपर आप लिख सकते हो। एंड करंट अफेयर्स मेजरली आपके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की वीडियो उससे कवर हो जाएंगे, प्लस आपके जो लीगल टॉपिक्स हैं वो वाली वीडियो से कवर हो जाएंगे। अगर आप मुझे @IamLoggery इंस्टाग्राम पे हर रोज़ फॉलो करते हो, एंड मतलब हर रोज़ आप वहाँ पे जो न्यूज़ में शेयर करती हूँ वो पढ़ते हो, तो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा रिसर्च टॉपिक ढूंढने के लिए। एंड कैसे लिखना है वो आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो एक चीज़ मैं और कर सकती हूँ कि आप मेरे बच्चे रिसर्च कर सके कि हर महीने आफ्टर एवरी 1 मंथ आपको www.loggery.com पर उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप एवरी मंथ आपको एक फ्री के अंदर आर्टिकल दे दूंगी, जिसके अंदर मैं टॉपिक्स दे दूंगी, फ्री आर्टिकल जिसके अंदर आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कि ये रिसर्च टॉपिक्स हैं। नहीं तो आपकी वीडियोस के अंदर तो मैं आपको बता ही रही हूँ, ये वीडियोस देखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपकी अवेयरनेस भी इन जनरल बढ़ाती हैं। जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो, कोई जनरल टॉपिक आपसे पूछा जाता है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपकी ओपिनियन फॉर्मुलेट होगी, जो अगेन आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो रिसर्च पेपर हम कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स लॉ के रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमें बहुत हेल्प करते हैं स्किल्स एक्वायर करने में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना। नेटवर्किंग करने में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली एक गुड सीवी तो बनता ही है, ठीक है ना। तो मूड कोर्ट क्या होते हैं, एक कोर्ट जैसी वो बनाई जाती है सिचुएशन, जिसमें जजेस होते हैं, आप लॉयर बनते हो, आपको एक केस दिया जाता है, टीम्स होती हैं, आप आर्ग्यू करते हो। तो मूड कोर्ट के ऊपर मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो करी हुई है, जिसके अंदर नॉट ओनली एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ विनर, आई हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंस एज अ जज, ठीक है ना, कि जजेस क्या चाहते हैं आपसे और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए मूड कोर्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लाइंट काउंसलिंग की वीडियो, मीडिएशन रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स है उसमें पार्टिसिपेट करना ना। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि दी हम इतना सब कुछ कैसे करेंगे। आपने बोला सब्जेक्टिव नॉलेज एक्वायर करनी है, ठीक है। आपने फिर बोल दिया कि बच्चों प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करनी है, और उसको इक्वेट कर दिया इंटर्नशिप्स के आगे कि इंटर्नशिप्स करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है डी। फिर आपने बोला कि रिसर्च पेपर भी लिख लो, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करो। ये नन्ही सी जान क्या क्या करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव नॉलेज 1 मंथ बिफोर द एग्जाम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंटर्नशिप्स, वेकेशंस, आज के बाद वेकेशंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है अपने दिमाग में। हॉलीडेज इज इक्वल टू इंटर्नशिप्स, हॉलीडेज क्या है, इक्वल टू
इंटर्नशिप्स। हर कोई कमेंट में लिखेगा ताकि याद रहे, हॉलीडेज इज इक्वल टू इंटर्नशिप्स, ठीक है। और सेमेस्टर के ड्यूरिंग भी इंटर्नशिप्स कर सकते हो, सेमेस्टर के ड्यूरिंग भी इंटर्नशिप्स कर सकते हो, ठीक है। और सेमेस्टर के ड्यूरिंग आप ऑनलाइन इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप वीकेंड वाली इंटर्नशिप कर सकते हो, अगर इवनिंग में फ्री हो तो इवनिंग वाली इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो वेकेशन वाली तो हम 101% हर कोई जाएगा, वेकेशन में कोई मुझे घर पर दिखा तो पिटाई होगी। रिसर्च पेपर हम सेमेस्टर के ड्यूरिंग भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, वेकेशन के टाइम पे भी लिख सकते हैं। जब इंटर्नशिप कर रहे हैं तब फ्री भी होते हैं इवनिंग्स में, तो वेकेशन के टाइम पे भी हम रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स हम सेमेस्टर के टाइम पे अगर कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तो सेमेस्टर के टाइम की इंटर्नशिप आप कैंसिल आउट कर सकते हो, वेकेशन वाली इंटर्नशिप कोई कैंसिल आउट नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है हम इस चीज़ पे। अब जो एक फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है 1 सेमेस्टर इज इक्वल टू 1 कॉम्पिटिशन मिनिमम। ये अगर कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर सकते, कंपटीशन में इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, मुझे 1 ईयर का 1 कंपटीशन तो चाहिए ही है। 5 ईयर लॉ के बाद 5 सर्टिफिकेट्स चाहिए मुझे, जिससे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अकेला सर्टिफिकेट नहीं। और 3 ईयर लॉ वालों के 3 मिनिमम कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। एक कोट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई टोल्ड माई सन, यू नो हु इज जैक मा, फाउंडर ऑफ अली बाबा ग्रुप, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। यू डोंट नीड टू बी इन द टॉप 3 इन योर क्लास। मैं भी आपको यही कहूँगी, टॉपर बनने की तरफ मत भागना, ठीक है ना। बुक वर्म बन के मत बैठ जाना कि किताबें पढ़ी जा रहे हो पढ़ी जा रहे हो पढ़ी जा रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। टॉप करके पढ़ते, इतना अच्छा पढ़ लिया, और जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ने के लिए कह रही हूँ ना, आप टॉप कर सकते हो 1 मंथ के अंदर भी, ठीक है। तो इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखना। बट एम क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ। पढ़ते हैं, बीइंग इन द मिडल इज फाइन, अबव एवरेज स्कोर करना, सो लॉन्ग एज योर ग्रेड्स आरंट टू बैड। ये नहीं कि एग्जाम में फेल हो रहे हो, ये भी नहीं मैं कह रही हूँ, ठीक है। ओनली दिस काइंड ऑफ पर्सन हैज इनफ फ्री टाइम टू लर्न अदर स्किल्स। कोई और स्किल पे काम करने का, कोई और स्किल पे काम करने का, एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का, रिसर्च पेपर लिखने का, इंटर्नशिप्स करने का, ठीक है ना। टू लिस्ट क्या बनती है बच्चों आपकी, टू डू लिस्ट क्या बनती है, मार्क्स अबव एवरेज, मार्क्स अबव एवरेज। अगर एक एवरेज बच्चा 65% लेकर आ रहा है तो तुम कितने लेके आओगे, तुम्हारा एम होगा अबव 70%, एवरेज नहीं, अबव एवरेज। इंटर्नशिप्स मिनिमम 10 बाय द एंड ऑफ योर डिग्री, 5 ईयर है तब भी, 3 ईयर है तब भी, मुझे 10 चाहिए इंटर्नशिप्स। और जो लोग कह रहे हैं हम फेक सर्टिफिकेट्स बनवा लेंगे, तो तुम फेक हो, ठीक है ना, तो तुम लॉग इन नहीं हो सकते। मुझे ऐसे बच्चे नहीं पसंद जो फेक सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं, और तुम पकड़े जाओगे, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस चाहिए हमें इंटर्नशिप्स का। सर्टिफिकेट तो सीवी में दिखाने में काम आएंगे, बट जब इंटरव्यू होगा तो एक्सपीरियंस बोलेगा, राइट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चाहिए, अमेजिंग सीवी, किलर सीवी चाहिए, प्लस गुड स्किल्स बाय द एंड ऑफ योर लॉ, गुड सब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ये टू डू लिस्ट नोट कर लो अपने जर्नल के अंदर, ये मुझे चाहिए। अभी से प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दो। जो वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं वो सारी वीडियोस मेरे बच्चे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सारी। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना, बिकॉज लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं और बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी, राइट। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट्स में मेरे साथ चैट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो मुझे बताओ, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोज। एंड प्लीज डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज वहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोज मैंने लिंक कर रखी हैं, जो आपको देखने में, देखकर आपको पता चलेगा कि आप क्या, किस तरफ आपको जाना चाहिए लाइफ में एज अ लॉ स्टूडेंट, राइट। सो लॉगिरी साइनिंग ऑफ, I'll see you super soon. Don't forget to follow me on Instagram, and that by the name at I am Loggery. Bye. See you.